So, hi guys, we'll be starting with the principle of natural justice right now. It is one of the most hottest topics, frankly speaking, जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक से दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, बीट एनी लॉ एग्जाम. Uh, so let's start with it. First of all, uh, there are some thinkers which we need to study जो बताते हैं कि what is natural justice actually. First of all, there is Aristotle. Aristotle states that principle of natural justice are nothing but apart from some natural or universal laws. Then there is Mr. Justinian, who states that natural law are also known as jura naturalia. ठीक है, उनको हम ये भी कह सकते हैं, ये जस्टिनियन साहब ने बताया. फिर इसकी बात कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी करी गई थी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि नेचुरल जस्टिस आर द एसेंशियल एलिमेंट्स प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट. ठीक है, क्योंकि अर्थशास्त्र में स्टेट क्राफ्ट के बारे में बहुत बात करी गई थी. ठीक है, देन देयर इज दिस जजमेंट ऑफ मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस सीईसी. In it, the judge explains that natural justice is to make fairness a creed of life. What do we mean by creed of life here? That it is the essential elements, one of the most essential elements of life. Without natural justice, the life will not be fair. That is what the interpretation comes out of this particular thing. Right. So these are a few aspects. So principle of natural justice are procedure requirements which ensures fairness in the process of exercise of governmental power. Shaughnessy versus United States, Judge Jackson's uh, elaboration was that the history of liberty is the history of procedural safeguards. If there is no procedural safeguard, there will be no liberty. Right? They are coexistential. It is very important to understand that. मेजरली दो प्रिंसिपल्स है, लेकिन तीन कहे जाते हैं. तीसरा है गिविंग रीजन ऑर्डर्स, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियो अल्ट्रम पार्टम, सेकंड इज नीमो जुडिक्स कॉजा सुआ in causa sua. Increasingly, a third principle of giving reasoned orders has also been treated as a principle of natural justice, जो एक एक कृपायक कृपायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी बताया गया है. एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस टू एडमिन प्रोसीडिंग्स. कौन से केस में बताया गया इसके बारे में? ए के कृपाक, मेनका गांधी केस एंड मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस सीईसी, जो मैंने आपको भी बताया भी था. ठीक है. In the Indian Constitution, principles of natural justice are firmly rooted in Article 14 and 21, which emphasize fair, just, and reasonable procedure in executive and legislative action. The practical test is now to examine the nature of function exercised and not the nature of the authority. That is, whether admin or quasi judicial admin is exercising it. Right. So these are a few prospects. मैं आपको डिवीजन क्रिएट कर देता हूँ एक बारी अबाउट द प्रिंसिपल्स, कि किस तरीके से वो उभरा. ठीक है. देर वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्किंग ऑफ एडमिन ट्रिब्यूनल्स इन इंग्लैंड, ट्रिब्यूनल्स इन इंग्लैंड. राइट. which is also known as the Oliver Frank Committee. Known as what? Oliver Frank Committee. 1955 of 1955. यहाँ पे मेजरली चार चीजों के बारे में बात करी गई. पहला था क्या? नो मैन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड. नो मैन should be condemned unheard. Second, no man shall be the judge in his own cause. No man should be the judge in his
own cause. Thirdly, party is entitled to know the reason behind the decision. Reason decision जो मैं आपको बता रहा था ना, reasoning of a decision. Lastly, making available copy of a statutory report, judgment or order. Copy of statutory report should be available. So these are majorly four types. हम बात करते हैं इन तीनों की ही जब भी हम करने की कोशिश करते हैं, इसकी और इसकी, राइट। और इसमें भी ना दो डिविजन्स है। नो मैन शुड बी द जज इन हिज ओन कॉज के। फर्स्ट इज व्हाट, नीमो जुडिक्स इन कॉजस हुआ, nobody should be judge in his own cause. नीमो इन प्रोप्रिया कॉजा जुडिक्स, nobody in his own cause should be the judge। मतलब वो डिवीजन क्रिएट कर रखे हैं मैक्सिमम से। बस मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये भी एक डिवीजन है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll start with ऑडी अल्टरम पार्टम, राइट। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ फेयर हियरिंग कैन नॉट बी पुट इन अ स्ट्रेट जैकेट। कि फेयर हियरिंग होती क्या है, वो सिर्फ एक ही धागे में हम नहीं पिरो सकते। सम सिचुएशंस like disciplinary proceedings may require extensive hearing, practically akin to a trial, whereas in other cases where time is of essence, even post-decisional hearing may suffice. Notice must be mandatorily provided. It must be adequate. Adequate, mention time and place of hearing, mention all grounds and actions of the allegations against the person should उसमें होना चाहिए. Second hearing, giving the accused an opportunity to rebut the charges made either in person or through written representation. There is no right to oral hearing. Necessity thereof would be dependent on the nature, facts and circumstances of the case. ठीक है। चंद्रकांति दास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में इसके बारे में बताया गया। जो मटेरियल्स है उनको डिस्क्लोज भी करना बहुत जरूरी है। डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ओनली ऑन रेलेवेंट मटेरियल्स, राइट। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज ऑल्सो वायलेटेड if the adjudicatory authority decides on basis of undisclosed कॉन्फिडेंशियल मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मेरे ऊपर कोई केस हुआ है, सामने वाले ने जिसने केस किया है उसने कोई ऐसा मटेरियल दिया होगा जो मेरे को डिस्क्लोज नहीं किया गया अभी तक, तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो जाएगा। क्रॉस एग्जामिनेशन की राइट होती है, रिप्रेजेंटेशन की राइट होती है, इंक्वायरी रिपोर्ट भी शो करनी है, ये भी जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसके अंतर्गत आता है, राइट। तो दीज आर फ्यू थिंग्स। अब हम बात करते हैं स्पीकिंग ऑर्डर एंड रीजन डिसीजंस की। सबसे इसके बाद डिसीजन मस्ट बी टू डिस्क्लोज रीजंस so that reviewing authority can examine whether it was taken on the basis of relevant considerations or it suffers from an erroneous factual or legal foundation। सीमेंस इंजीनियरिंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इसके विषय में बात करी गई थी। रीजन शुड ऑल्सो शो, जस्ट अ सेकेंड, शो एप्लीकेशन ऑफ माइंड। एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए। अगर रीजन नहीं है, अगर रीजन के बिना हम कोई केस सॉल्व कर रहे हैं तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड होगा ही नहीं ना उसमें। मतलब जहां रीजन आता है वहां एप्लीकेशन ऑफ माइंड तो आना ही आना है, इस बात का ध्यान रखिए। एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, disciplinary action without proper reason is a violation of just, fair and reasonable procedure, which is given under which case? Sunil Batra versus Union of India. Important case है। Courts do not prescribe a fixed format or scale. The reason should reveal a rational nexus with the facts and the conclusion। देखिए nexus होना चाहिए। Nexus between what? Facts and the conclusion। ठीक है। However, in limited cases, this requirement can be excluded either explicitly by statute or impliedly by surrounding circumstances। For example, in the case of an externment order to protect the identity of the witnesses which are there। एक और केस है SN मुखर्जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Unless the requirement has been dispensed within the statute or by necessary implication, the authority is required to record the reasons for the particular decision। रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नीमो जुडॉक्स इन
जुडक्स इन कॉजा सुआ, रूल अगेंस्ट बायस, मतलब नो वन शुड बी द जज इन इट्स ओन केस वाला जो प्रोस्पेक्ट हम पढ़ रहे थे। इसके बाद हम उस पर जाते हैं। अभी मैं आपको कुछ कुछ केसेस भी बता देता हूँ साथ साथ। जस्ट सेकंड। ऑडियल ड्रम पैटर्न के मैं आपको केसेस बता देता हूँ यहाँ पे, और पेज ऐड कर देता हूँ। ऑडी एल्ट्रम पैटर्न, मतलब ये था दैट नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, अनहर्ड नहीं होना चाहिए। उसके क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स है मैंने आपको ये भी बता दिया, राइट। बट एक केस है, कैनरा बैंक वर्सेस अवस्थी का केस। कैनरा बैंक वर्सेस अवस्थी। If there is any lack in the proceedings of any case, then it can be resolved by using post-decisional hearing. Therefore, SC held in the facts of this case, post-decisional hearing of the appeal serves the purpose of pre-decisional hearing. तो इसमें डिवीजन कहाँ क्रिएट हुआ? प्रो डिसीजनल हियरिंग, सॉरी प्री डिसीजनल हियरिंग एंड पोस्ट डिसीजनल हियरिंग। हियरिंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, राइट। प्री डिसीजनल हियरिंग का प्रोस्पेक्ट तो होना ही नहीं चाहिए आइडियली, ठीक है। लैक ऑफ प्रोसीडिंग्स अगर होंगी तो वो किसके अंदर आएगा? पोस्ट डिसीजनल हियरिंग के प्रोस्पेक्ट के अंतर्गत आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, राइट। मैं आपको बता देता हूँ, हियरिंग्स आर टू फेसेट्स ऑफ ऑडी अल्ट्रम पार्टम। यहाँ लिख देता हूँ मैं, हियरिंग आर टू फेसेट्स ऑफ ऑडी अल्ट्रम पार्टम। नोटिस शुड बी क्लियर एंड कंसाइज, जो मैंने आपको बता दिया, विदाउट अमेनेबल टू मिस्चीफ एज रिगार्ड्स टू द राइट ऑफ हियरिंग इज कंसर्न्ड, then it is advisable that the notice presents his case physically in the courts. Also, there is a distinction between pre-decisional hearing and post-decisional hearing, because in the latter, an individual is given an opportunity to be heard after a tentative decision is taken. इसमें there is a tentative decision already which is taken, right? Therefore, post-decisional hearing, in post-decisional hearing, the most important point is that the authority must have taken only a tentative decision post which an hearing is conducted and after decision is made. ठीक है, एक डिसीजन होना चाहिए पोस्ट डिसीजनल हियरिंग के लिए, एक प्री एग्जिस्टिंग डिसीजन बहुत जरूरी है इस चीज के लिए, राइट। रीजनेबल ऑर्डर के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज मैंने लिखी थी आप लोगों के लिए, डेलीगेटेड रजिस्ट्रेशन, गिव मी अ सेकंड गाइस। यस, सुनील बत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो मैं आपको बता रहा था ना, एक केस। सुनील बत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, सुनील बत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो सो अंडर सुनील बत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुनील बत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, the case was majorly in respect to what? Reasonable orders, कि किस तरीके से एक ऑर्डर रीजनेबल है, उसका प्रोस्पेक्ट किस तरीके से रीजनेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। इसका बैकग्राउंड क्या था? द केस अरोज व्हेन सुनील बत्रा, a death row prisoner in Tihar jail, wrote a letter to Supreme Court complaining that another inmate, Prem Chand, was brutally tortured by prison warden. A rod was inserted in his anal region to extort money from his family. Right. The Supreme Court treated the letter as a writ petition of habeas corpus under Article 32, making one of the earliest instances of epistolary jurisdiction where a mere letter prompted constitutional intervention to protect human rights. Right. सो इसके अंदर बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स इन्वॉल्व थे, टॉर्चर, क्रुएल्टी, रिफॉर्मेटिव जस्टिस, राइट। और क्या कहते हैं,
प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी रिलेटेड था। इस केस में अगर आप देखिए, किसी केस में इतना ब्रूटल टॉर्चर हो रहा है, राइट, तब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का इन्वॉल्वमेंट तो आएगा ही आएगा, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट लेड, which was the Supreme Court was led by Mr. Justice Iyer. It explicitly read the principle of fairness and reasonableness. The found is the foundation of natural justice, right? पहली बात तो फेयर प्रोसीजर और ऑर्डी अल्टरम पार्टम की बात आई इस केस में। सेकंड, नेचुरल जस्टिस एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 की भी बात आई, राइट। तो ये रीजनेबलनेस का प्रोस्पेक्ट, एक ऑर्डर रीजन होना चाहिए। रीजन क्यों था ये? क्योंकि पहली बात, एपिस्टोलरी एपिस्टोलरी जुरिसडिक्शन का इन्वोकेशन हुआ था। सामने वाला इंसान तो डर जाएगा ना यार, अगर किसी के सामने, उसके सामने ऐसी हरकत कोई कर रहा होगा तो, राइट। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ये केस आया था, सुनील बत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट। आई थिंक वील स्टार्ट विद नीमो डिडक्स कॉजस हुआ, रूल अगेंस्ट बायस। यस, काफी तरीके की बायस होती है, बट इट वॉज फर्स्ट लेड डाउन बाय हूम? बाय लॉर्ड कोक। लॉर्ड कोक इन डॉक्टर बोनहम्स केस, राइट। इसमें काफी तरीके की बायसेस हैं, ठीक है, मैं आपको भी बताऊंगा अभी।